سب سے زیادہ تو نمازوں کا اہتمام کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے قرآن کے اندر کہا جو مجھ سے ڈرتا ہے تو میں اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، گناہوں سے بچیے اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کیجیے. 40 دن یہ تینوں عمل آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے کام کے اندر برکت اللہ ضرور دے گا. چلیے عطیہ سلطانہ اس وقت ہمارے ساتھ کرناٹکا سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. عطیہ سلطانہ جی اگر آپ تک آواز پہنچے تو بات کیجیے. جی بہن اگر آپ ٹی وی سیٹ کی والیوم پر ہی دھیان دیتی رہیں گی تو آپ سوال نہیں پوچھ پائیں گی. چلیے اب واجد سے بات کریں گے اور جو تلنگانہ سے جڑے ہمارے ساتھ. جی واجد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ بہہ کے باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ تماشا کرتے ہیں اور بھٹ کے بات کرتے ہیں، تو 3-4 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی، تو ان کے اوپر شیاطین ہوتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں؟ ایک کوشچن ہے کیونکہ کس طرح پہچانے، جیسا کہ وہ کوئی سا بھی سوال کرو اس کا جواب دے دو، اور بالکل جو تو آنکھ اور چہرے سے یہ معلوم ہوتا کہ ان کے تو کچھ اثرات ہے، لیکن کیسے پتا کریں گے شیاطین ہے یا ان کے پاس جنات ہے؟ اور کوشچن یہ ہے، میری بہن امریکہ میں ہے اور ان کی بیٹی بھی امریکہ میں ہے، انمیرڈ لڑکی ہے وہ. اب پہلے دونوں بہت اچھے کلوز تھے، اچھا رشتہ تھا وہاں بیٹی کا. ابھی بیٹی اچانک جو ہے ایسا ہو گئی کہ ماں کو جو سو ارے ترے اور لاٹھی ووٹھی اٹھا لے رہی، مارنے کے لیے گالی گلوچ دے رہی اور بالکل بدتمیزی کر رہی، اور ماں پریشان حال ہے. میری بہن بے انتہا پریشان ہے، کبھی کبھی وہ لٹ اٹھا لیتی، کبھی کبھی چاقو نکال دیتی. تو امریکہ میں کام ایسا بالکل جیسے بچی نہیں تھی، اچھی بچی تھی وہ، اور اس طرح وہ ہو گیا. تو میری بہن بہت پریشان ہے، تو ان کا سوال وہ یہ کر رہا تھا کہ بچی کے پاس اثرات ہے یا پھر کیا ہو گیا وہ پتہ نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے اس کے حساب سے جاننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیے جو آدمی بہکی باتیں کرتے ہیں یا عجیب طریقے سے رہتے ہیں، یہ آپ کسی عامل کے پاس ان کو لے کر کے جائیے جو اس عملیات کو کرتے ہیں، جنات وغیرہ بتاتے ہیں. ایک حمزات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ تر برائی کی طرف بلاتے ہیں، ان کو حمزات بھی بولتے ہیں، اور قرآن پاک میں من حمزات الشیاطین کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ وہ حمزات ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے. زیادہ تر وہ برائی کا ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ برائی کرے. لیکن اگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف چلتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ اکساتا نہیں ہے. تو یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ زیادہ انسان کو اکساتا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ بہکی باتیں کرواتا ہے. اب حمزات تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ اتنا بہکاتا تو سارے کے سارے آدمی بہکی باتیں کرتے. تو یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے اوپر کسی جنات کا یا شیاطین کا اثر ہو. اور جنات جو ہے، شیاطین جو ہے وہ جنات ہی کی قسم میں سے ہیں. شیاطین جنات ہی کی قسم میں سے تو 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ کسی عامل سے پتہ کریں. رہی بات آپ کی امریکہ میں رہنے والی بہن سے، دیکھیے وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی اثر ہی ہو. وہاں پر معاشرہ و کلچر ہی ایسا ہے کہ رشتوں کی اور نعتوں کی کوئی قدر نہیں ہے. نہ وہاں ماں ہے، نہ وہاں باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ وہاں پہ پھوپھی ہے، نہ خالہ. وجہ ہے اس کی کیونکہ ان لوگوں نے اپنے معاشرے کو اتنا فری کر دیا ہے کہ اب رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو ہے بغیر باپ کی اولادیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے نہ رشتوں کا پتہ ہے. تو بھائی جب وہ ایسے معاشرے میں رہیں گی اور اپنے آفیسز جائیں گی اور دیکھیں گی تو پھر وہی کلچر آئے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ اس طریقے سے فالو کیا جائے اور ان کو جو ہے نمازوں کی ترغیب کی جائے یا وہاں کے قریبی علماء سے رابطہ کیا جائے. الحمدللہ امریکہ میں بھی بہت سارے اچھے علماء موجود ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر جنات و شیاطین کا ہی اثر ہو. چلیے 2 کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. واجد ہیں تلنگانہ سے اور ساجد ہیں، ساجد صدیقی بھی ہیں. لیکن چلیے واجد جی سے بات ہو چکی ہے، معاف کیجیے گا. ساجد جی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. ساجد جی اگر اب تک آواز پہنچے تو بات کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شاہزیب، میرا ایک سوال تھا جی. ہیلو. جی آپ ٹی وی سیٹ کی والیوم پہ دھیان نہ دیجیے، سوال پوچھ لیجیے.
मैं पूछना चाह रहा था, सुन्नत जो काफी लोगों के मैंने सुना है कि सुन्नत रसूल की पढ़ते हैं, तो ये जायज है या जायज नहीं है, बस मुझे यही मालूम करना था। देखिए, नमाजों के बाद या पहले जो सुन्नतें होती हैं वो ये जो लोग ये कहते हैं कि सुन्नत पढ़ता हूँ, सुन्नत रसूलुल्लाह की, तो जो फर्ज के अलावा है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही पढ़ी हैं, उनको सुन्नत रसूलुल्लाह की कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि मैं रसूलुल्लाह के लिए पढ़ता हूँ। इन दोनों बातों में फर्क है। एक तो यूं कहना कि मैं सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ता हूँ, यानी कि जो उन्होंने बताई है, ऐसे ही फर्ज भी उन्होंने बताए हैं, लेकिन वो हुक्म रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है, कुरान में आया है, ठीक है। लेकिन कुछ सुन्नतें हैं जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हालांकि अल्लाह के हबीब कोई भी काम अपनी तरफ से नहीं करते थे, सब का सब अल्लाह की तरफ से होता था। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, जो भी कहते हैं वही के जरिए कहते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली होता था। तो इसलिए वो जो सुन्नत है अल्लाह के हबीब की, सुन्नत रसूलुल्लाह की कह सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं है। कोई कहता है तब भी ठीक है, नहीं कहता तब भी ठीक है, लेकिन ये अकीदा नहीं रखना है कि मैं रसूलुल्लाह की वजह से या रसूलुल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ। हमारी जो भी इबादतें होती हैं वो अल्लाह को राजी करने के लिए होती हैं। जब अल्लाह राजी होगा तब रसूलुल्लाह राजी होंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत के अंदर रसूलुल्लाह की इताअत है। तो इसलिए कोई हरज भी नहीं है। कोई कहता है तब भी ठीक है, नहीं कहता है तब भी ठीक है। इमराना खातून है हमारे साथ अगले कॉलर, लेकिन इनसे हम बात करेंगे वक्फे के उस पार, क्योंकि यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। फौरन हाजिर होते हैं, लगातार जारी है रहबरे जिंदगी। दो कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। इमराना खातून, अस्सलाम वालेकुम। एक बात पूछनी है, हमारे जेठ मर गए, तो वो इद्दत में बैठी थी उनकी बीवी, तो उनकी इद्दत पूरी हो रही है जी। तो कोई तो कहता है सुबह का टाइम निकालो, कोई कहता है उस टाइम निकालो, इस टाइम वो मरे थे। तो आप ये बताइए कि किस टाइम हम उनको निकालो, और एक ये कि उसके घर जाए, भाई के साथ जाए या अपने जेठ के साथ या देवर के साथ, मतलब किसी के घर जाना जरूरी है क्या? अच्छा, ये कोई ऐसा रिवाज बताते हैं कि इद्दत पूरी होने के बाद एक तो वही टाइम हो जब वो गुजरे या उनके मैयत घर से निकली थी, और या अपने किसी रिश्तेदार के साथ बाहर जाए घूमने के लिए। पाँव फिरवाना किसको कहते हैं? वो तो यूँ कहता है सुबह के टाइम निकालो, नमाज के टाइम, और कोई कहता है जब मारे थे जब निकालो। तो ये बताइए आप किस टाइम निकालें? वैसे ऐसा कोई भी जवाब नहीं है, बाकी मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं जी। देखिए, अगर जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है वो दिन जो है उसमें कोई टाइम मुतय्यन नहीं होता है, और ये कंपलसरी भी नहीं। अच्छा, सबसे जरूरी चीज ये, बाहर निकलना जरूरी है क्या औरतों को? अल्लाह के हबीब ने खुद कहा है कि ज्यादातर घर में रहो, अगर कोई जरूरी मजबूरी है तब निकलो। तो जब उनको मजबूरी आएगी उस तारीख के बाद कि ये तो जरूरी नहीं है, सुबह में ही आएगी या शाम में, हो सकता है 5 दिन के बाद। ये जो इन्होंने बताया सवाल, ये एक अलग ही किस्म का जो है लोगों ने मनगढ़ंत, हाँ जी, ये रस्म जिस दिन आप समझे 4 महीने 10 दिन में पूरी हुई, जो होती बेवा की होती है इद्दत, 4 महीने 10 दिन में हुई, उसके बाद ये कहते हैं कि जिस वक्त मैयत उठी थी उस वक्त वो खत्म होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि फिर कहते हैं कि कहीं घुमाने के लिए लेके जाना है सेम डे, क्योंकि वो इतने महीने अंदर थी तो किसी न किसी के रिश्तेदार के यहाँ दावत होती है, कुछ इस तरह की चीज होती है, तो बाहर निकालते हैं। इस बारे में कुछ बताइए जी। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने कहा ये वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि जाहिलियत की तरह न फिरो घर से बाहर निकल के। कुरान तो हुक्म कह रहा है वकरन फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में रहो। आप कह रहे हैं बाहर जाओ घूमो, मतलब ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह का कुरान कह रहा है वकरन फी बुयूतिकुन्ना, जो इद्दत में भी नहीं है उनको भी घरों में ही बैठना है, इल्ला ये कि बहुत ज्यादा कोई मजबूरी हो, ऐसी मजबूरी कि जो शरीयत मजबूरी मानती है। फिर ऑब्जेक्शन करने से पहले ये सोच लेना कि शरीयत मजबूरी किस चीज को मानती है। तो इद्दत के अंदर शरीयत में ऐसी कोई रिवाज नहीं है कि आप जो है उनको बाहर निकालें, कोई टाइम मुतय्यन हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जेठ देवर से तो पर्दा है जनाब। देवर के बारे में हदीस के अंदर है कि देवर तो मौत है, देवर तो मौत है, यानी कि वो जवान है, भाभी भी जवान है, बिल्कुल पर्दा है और बिल्कुल नाजायज और हराम है देवर के साथ भी जाना, जेठ के साथ भी जाना। ये क्या तरीका? अपने सगे भाई के साथ जा सकती है, अपने सगे मामू के साथ, अपने सगे चचा के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने बेटे के साथ, और जब जा सकती है जबकि कोई मजबूरी हो, बस। चलिए गौसे जी से बात करेंगे, चेन्नई से जुड़ी है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, आप थोड़ा बुलंद आवाज में बात कीजिए क्योंकि बहुत ही कम आवाज आ रही है।
जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे नवासे हैं 3 साल के, उनका नाम है फहीम। तो भी अब 1.5 महीने की बेटी को मानी, उसका नाम फिजा। ये नाम ठीक है क्या, फिजा और फहीम रखो इसको? जी ठीक है नाम। जी, वो नाम से अच्छा है क्या बच्चों लोगों को? हाँ सही है। दुआ करो मुफ्ती साहब बच्चों पर से। जी अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, आलिम बामल बनाए और जो है अमल करने वाले बनाए, नेक सालेह बनाए, आमीन। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि नाम के मायने और ख्वाब की ताबीर ऐसे सवालों से आप परहेज करें और जो दीगर सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर है आयशा, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए बहन। बच्ची के बारे में मुफ्ती साहब बोले आयत हमें भूल गए है, वो रिकॉर्डिंग कर ले बोलो तो फोन। आप समझ पा रहे हैं? जी बताइए क्या हुआ था, तबीयत बताइए क्या हुआ था, क्या परेशानी थी? 2 महीने हुआ बच्ची से बुलाला का फोन करेंगे क्या तो उनके दिल में मोहब्बत इसमें है, मेरी जोरू को मोहब्बत इसमें है, आपका का काज इसमें तो है, इसके वास्ते में परेशानी नहीं है। उसमें क्या भी बोलेंगे क्या है जी ठीक है, मैं वो आयत बताता हूँ, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, ये आयत किसी भी चीज खाने पीने वाली चीज पर जो है दम करके मियाँ बीवी दोनों खाएं, इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनमें मोहब्बत होगी। और देखिए घरेलू माहौल और फराइज यानी कि फर्ज नमाजें, इनका एहतिमाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत, इनसे मोहब्बत ज्यादा बनती है। बाकी ये आयत जो है 16वें पारे में है, काला अलम का पारा जो है व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। चलिए चेन्नई से एक और कॉलर है हमारे साथ रेशमा, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। मेरा सवाल ये था कि ये कहीं भी मेरा रिश्ता फिक्स नहीं होता, जहाँ पे भी होता है ऐसे तकरार करके उनके दूर जाता है। शादी ऐसा क्यों होता है शादी? जी जी बहन ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है बहुत सारी जगह पर, और खासकर आजकल लोगों के जहन बदल रहे हैं। कभी कोई कुछ कह देता है, कोई अपने दिमाग में लालच भर के आता है, हर 1000 तरीके की सोचें हैं, 1000 तरीके के दिमाग हैं। आप अल्लाह से दुआ करें और 3 मरतबा सूरतुर रहमान पढ़ा करें किसी भी नमाज के बाद, खुसूसन फजर में, और अल्लाह से दुआ किया करें। और या लतीफू या वदूदू, ये अल्लाह के 2 मुबारक नाम हैं। आप इन नामों को सुबह फजर के बाद 100 मरतबा और असर के बाद 100 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह आपका रिश्ता अच्छी जगह तय हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अलाउद्दीन शेख है इस वक्त हमारे साथ आंध्र प्रदेश से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहदा बहन। वालेकुम मुफ्ती साहब। जी जी बताइए। थोड़े घर में थोड़े परेशान थे, जब मेरी लॉकडाउन से नौकरी छुट्टी थी, जी जी थोड़े खर्चा का उससे बहुत तकलीफ था घर में, और हमारे सहत के बारे में भी जरा दुआ करते हो जाए। और बड़े लोगों के नाम बच्चा के रख सकते क्या चीज दोबारा बताइए? बड़े लोगों के नाम हमारा आपा का नाम ही बच्चे को रख सकते क्या? बड़े लोगों के नाम पर बच्चे का नाम रख सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ। कौन बड़े लोग? गुजर गए थे। अच्छा, जो गुजर चुके हैं घर में। जी जी हाँ, क्यों नहीं, क्यों बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें क्या जी। देखिए दुआ के लिए कह रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके घर में, काम में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, आपके बच्चों को अल्लाह ताला कहना मानने वाला फरमा बरदार बनाए, आमीन। और नाम रखने का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आपके वालिद और दादा का नाम अच्छा था, माना वाला था, आप रख सकते हैं। बहुत सारे किताबें जो मौलवियत के अंदर पढ़ाई जाती हैं, उनके जो मुसन्निफ हैं वो ज्यादातर अपना नाम मोहम्मद अहमद महमूद, मोहम्मद अहमद महमूद, मतलब बाप का नाम भी यही, बेटे का नाम भी यही, पोते का नाम भी यही, मोहम्मद अहमद महमूद, और इसी तरीके से नीचे तक चल रहा, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मानादार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो जू माना हो। तो अगर जू माना है तो आप रख सकते हैं, और अगर मानादार नहीं है तो भाई परहेज किया जाए, फिर तो रखने में कोई हर्ज नहीं है। और माशाल्लाह इतने साहबा और साहबियात के नाम हैं, उनके ऊपर भी रखे जा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब निखत है हमारे साथ, निखत परवीन बिहार से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा एक सवाल है। जी बताइए। जी हम कहना ये चाह रहे थे, जो है सो
तो मेरे सवाल है ना, कभी कभी ऐसा करते हैं जो ऐसा ही जो है तो कुछ घर में हुआ बात, इसी पर बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा कर लेते हैं, आवेश में आकर के बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते रहते हैं। इसी वजह से हम चाह रहे थे कि जैसे किसी के नाम पर का है तो वो अगर होता, यानी कि थोड़ा वो कूल हो जाए, उनका गुस्सा शांत रहे, ये कहना चाहती हैं? जी मैम। देखिए, उनको आप खिदमत और ताबेदारी हर औरत करती है, लेकिन मर्द का पता नहीं ये कैसा दिमाग है कि वो इतनी आपकी धोबन, आपकी कुक है, आपके बच्चों की देखभाल करने वाली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसी के ऊपर तेज हुए रहता है हर वक्त, हर घड़ी। सबसे पहले तो सारे मर्दों से मेरी गुजारिश है कि भाई कम से कम अगर गुस्सा निकालना है तो कहीं और निकालें। आप अपने जैसे किसी मर्द को पकड़ें, और जबकि उसकी गलती हो, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए गुस्से में ना रहा करें। अल्लाह के हबीब की सुन्नत ये है, जब घर में आते थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर आते थे तो बाहर के सारे मसले बाहर ही छोड़ देते थे। हमारा मसला ये है, लड़ाई बाहर दोस्त से बजती है, गुस्सा बीवी पे उतरता है, लड़ाई बाहर जो है ट्रैफिक में होती है, गुस्सा बीवी पे उतरता है। सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए। दूसरा ये है, आप हर नमाज के बाद इस्तिगफार किया करें 100 मरतबा, 5 नमाजों के बाद एक तस्बीह इस्तिगफार की, और अल्लाह से दुआ किया करें, इंशाअल्लाह मसला ठीक हो जाएगा। चेन्नई से फायजा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब से कि कुछ दिन पहले ये सवाल किया गया था कि चाचा या बहन और चाचा की बेटी या मामू की बेटी और जो भी है, मतलब कजिन्स होते हैं ना, उनसे शादी कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब ने बताया था कि वो शादी तो कर सकते हैं, लेकिन और एक सवाल ये उठ गया था कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जायज था कि वो चाचाजाद बहन या मतलब खाला की बेटी या मामू की बेटी उन लोगों से शादी कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक मुझे ये सवाल करना था कि करना है, मतलब कर सकते हैं शादी या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और दोनों में दो जो बातें हैं उनमें इख्तलाफात भी हैं। कुरान की जो आयत है वो तो वाज़ेह तौर पे ये कहती है, ए नबी के तुम पर ये जायज है और बाकी लोगों पर हराम है। बाकी मुफ्ती हिसाब से हम पूछते हैं कि मसला क्या है ये पूरा। जी देखिए, जो कजन होती हैं उनके लिए तो कोई हरज ही नहीं है। किसने कहा है? अल्लाह कुरान के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके लिए जायज है, आपके लिए नाजायज है। आपने कहा किससे सुना है? ये मुफ्ती साहब ही आए थे और उन्होंने कोई तस्करा किया था और उसका तर्जुमा बताया था। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम के निकाहों के बारे में सिर्फ एक ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा ये हुआ था, उनका एक मुंह बोला बेटा ज़ैद बिन हारिसा थे, उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, तो अल्लाह के हबीब ने उनकी बीवी से शादी कर ली थी, बट वो मुंह बोले बेटे थे। उस वक्त ये लोगों ने एतराज किया कि जी तुमने तो अपने बेटे की ही मुझसे शादी कर ली है, बहू से, बीवी से, यानी कि। तो उस पर कुरान पाक की आयत नाजिल हुई कि मुंह बोला बेटा होने से वो सगा और हकीकी बेटा नहीं होता। ये कुछ इस तरीके के। बाकी कजन से शादी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। यही तो इस्लाम है। जो हराम है वो लन तनालुल बिर्रा 4 पारा है, उसकी आखिरी आयत आप पढ़ लें, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम। जो जिन से आप निकाह नहीं कर सकते उनकी तफसील वहां पे मौजूद है, बहुत लंबी तफसील है, लेकिन मामू, खाला, फूफीजाद, चचाजाद, इन सब से निकाह जायज है, कर सकते हैं, करना चाहिए। चलिए आरिफा जी से बात करते हैं, तमिलनाडु से जुड़ी है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल यह है, मेरी भान को 1 साल का बच्चा है, बार बार गोद में पेशाब करना, कपड़ा बदला नमाज पढ़ना की नहीं, पानी नहाकर नमाज पढ़ना की। चलिए ठीक है, क्या बता? इनके गोद का कोई बच्चा बहुत छोटा और वो बार बार पेशाब कर देता है, तो कह रहे हैं कि कपड़े बदल के करें या वो उस जगह को धोकर भी नमाज पढ़ सकते हैं? जी, उस जगह को धोकर के भी नमाज पढ़ सकती है। चलिए रिजवाना जी हैदराबाद से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 सवाल करना था मुझे। जी। तो हमारे अम्मी पे मुझे बहुत गुस्सा आता, उन्हें 2 नजरिया करते। आपकी अम्मी को बहुत गुस्सा आता है? मेरे को बहुत गुस्सा आता हमारी अम्मी पे, क्योंकि उन्हें 2 नजरिया करते, 2 बेटियों को चाहते, 2 बेटियों को नहीं चाहते। ऐसा आपने महसूस किया कि वो नहीं चाहते हैं 2 बेटियों को? नहीं, मैं भी महसूस करती हूँ और मेरी बड़ी बहन भी महसूस करते, और आपके भी बोलते कि हाँ। कोई वजह ऐसी खास कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती?
نہیں، جب بھی میں کوئی چیز بولتی ہوں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی. پھر دوسری بہن، میری چھوٹی بہن بولتے تو پھر جلدی ان کو سمجھ میں آ جاتا. میں بولتی ہوں تو صاف انکار کر دیتے ہوں نا. اچھا، آپ کیا جاننا کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے. اس پر تو ہم بات ضرور کریں گے، لیکن آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں. میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ مفتی صاحب میرے لیے دعا کرے کہ امی 4 بیٹیوں کے ساتھ ایک جیسی محبت کرے، اور میرے کو کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بولیے کہ میں پڑھ کے امی کے لیے دم کروں کہ انہوں سب کو ایک نظر دے، کہ بس سب کو برابر پیار کرے، کسی کو کم نہیں کسی کو زیادہ نہیں. دیکھیے، ماں باپ کو تو یہی چاہیے، اور ہوتے بھی ماں باپ ایسے ہی ہیں، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں ایسی چیزوں میں جہاں انصاف کرنا چاہیے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز دینی ہے یا کوئی چیز ان سے لینی ہے، یا جیسے وراثت کا حق ہے، یا کسی کے کپڑے لائے ہیں، یا کسی کو پیسے دیے، ان میں تو بالکل برابری ضروری ہے. نہ ماننے کی بات، ہر گھر میں کوئی عقل مند زیادہ ہوتا ہے، کوئی سمجھدار زیادہ ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، اور محبتیں بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہیں. ماں باپ کسی بچے سے محبت زیادہ کرتے ہیں جو خدمت زیادہ کرتا ہے، جو کہنا زیادہ مانتا ہے، یا کسی چھوٹے کی الگ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ساری بیویوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں. بتائیے آپ کیا کریں گے؟ میں اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں. بتائیے آپ کیا کریں گے؟ تو یہ اولاد کی محبت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. آپ کو یہ نہیں سوچنا ہوگا امی نے میری بات مانی نہیں ہے. آپ غور کرنا، کبھی کبھی مانیں گی. بالکل ایسا ہوتا ہے، اور ہم تو یہی کہیں گے کہ اولاد کو تو بالکل بدگمان نہیں ہونا چاہیے اپنے والدین سے. اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے، حالانکہ ہوتا ہے تھوڑا فیوریٹزم آ جاتا ہے، مطلب چھوٹوں سے زیادہ محبت ہونے لگتی ہے. کئی باری جو ماں ہوتی ہے اپنی چھوٹے اولاد کو زیادہ چاہتی ہے یا بڑی اولاد کو زیادہ چاہتی ہے، پر آپ بالکل دماغ سے نکال دیجئے کہ یہ کم یا زیادہ والا معاملہ ہے. برابر ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ توجہ زیادہ دیتی ہوں، لیکن آپ بدگمان بالکل نہیں ہوئیں گی. چلیے ابھی ایوب خان سے بات کریں گے، تلنگانہ سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. فرمائیے بھائی. میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے، یہ ناپاکی نہیں رہتے نا تو یہ قرآن شریف سن سکتے کیا اپن پین ڈرائیو میں ڈال کے؟ دیکھیے، بنا وضو کے قرآن پاک نہیں چھو سکتے. بنا وضو کے قرآن پاک چھونا جائز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ باوضو ہیں، موبائل میں بھی اس وقت ہوئیں گے جبکہ آپ وضو سے ہیں. سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اگر آپ حافظ ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے قرآن پڑھنا ہے اور آپ کا وضو نہیں ہے، تو میں بہتر طریقہ یہ بتاتا ہوں، جو سورت جو پارہ آپ کو پڑھنا ہے اس کو آپ آڈیو میں چلائیے اور خوب سنیے. سننے کا بھی وہی ثواب ہے اور پڑھنے کا بھی تقریباً وہی، پڑھنے کا تھوڑا زیادہ ہے. لیکن اگر آپ ایسا وضو سے نہیں ہے تو چھوا مت کیجیے، وضو سے ہی چھونا جائز ہے. چلیے یہاں پر وقت تو چلا ہے مزید وقفے کا، فوراً حاضر ہوتے ہیں بریک. دیکھ رہے ہیں رہبر زندگی، اور شبینہ اور شفا دو کالر ہے ہمارے ساتھ. پہلے شبینہ سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام. جی جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سلام. جی وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. بتائیے. پہلا سوال، ہمارے خالہ ہیں بہت سیریس میں ہی، انہوں بہت 8 روز سے نسیم النساء نام انکان کے واسطے دعا کرو، ایسے میں ہی انہوں ان کو آپ تیسرے دن سیم کال کر رہی ہیں، ہم تیسری مرتبہ بھی بتا رہے ہیں، ہم 2 دن سے ہی 2 دن تو ہم نے کری ہے دعا ان کے لیے، تیسرے دن بھی وہی سیم بہت واقع میں ہی انہوں ایسے میں ہی انہوں. جی جی بالکل بے شک ہوں گی. چلیے کوئی نہیں، ہم آج پھر کر دیں گے. اور بتائیے دوسرا سوال. ایک سوال ہے، ہماری بچی کا اچھا رشتہ ہونا، تو وظیفہ کیا پڑھنے کا ہے؟ بچی کی شادی ہو کو 2 مہینے ہوگا، اور سب کو ہے گھر میں، آپ کو ہے بچی، اچھا وظیفہ یہ رشتہ ہونا بچی کے لیے. اور ہمارا آدیش دعا کرو، ہمارا آدیش بھی ہی بہت سنتے نہیں بات، ہمارا امی کے ہمارا ابا نہیں گھر میں، ہمارا اپنی کی بات سنتے نہیں، گندے عادت برے صحبت، پاون دھوتے نہیں، پانی نہاتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، ایسا شیطانی عادت کر لے کو پھرتے رہتے ہیں، کیا بولتے بھی نہیں سنتے. ٹھیک ہے. ویسے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ لگاتار تیسرے دن بھی سیم سوال کر رہی ہیں. آپ کی جو خالہ جان ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اس بات کو لے کر. لیکن آپ دھیان سے سنیں، ہم پروگرام کے اینڈ میں کرتے ہی ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں آپ نے بولی ہیں مفتی صاحب کا چھوٹی سی دعا کر دیجیے. جی اللہ تعالیٰ آپ کی خالہ ہیں، ان کی خالہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور جو بھی لوگ ان کے رشتہ پریشان ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور جو رشتہ نہ ملنے کا وظیفہ ہے
3 मरतबा सूरतुर रहमान दिन में किसी भी वक्त पढ़ें, और या लतीफू या वदूदू की तस्बीह एक सुबह और एक असर की नमाज में पढ़ करके दुआ करें। अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिश्ता नसीब होगा। चलिए शमीना जी से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। जी बताइए। ऐसे कोई मोमिन की मौत हो जाती है तो जियारत करते हैं, ये थोड़े लोग 10वां 20वां तहलम सब करते हैं, ये जायज है क्या? जी 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 नहीं, जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ बिल्कुल जायज नहीं है। 10वां 11वां नाम लेकर के कहना बिल्कुल नाजायज है। ये भी एक बहुत बड़ी मनगढ़ंत चीज है। लोगों ने अपने खाने पीने, अपने शौक, अपने रिश्तेदारों को खिलाने के लिए बनाई हुई है ऐसे रिवाज। हिंदुस्तान में रहते हैं हम, सारी फिल्में देखते हैं, सारे ड्रामे देखते हैं। ड्रामा सीरियलों में, फिल्मों में देखा नहीं है आपने? ये वो उनका 10वां तीजा चौथा जो है 10वां 11वां 13वां 40वां और फिर बाद में बरसी, ये सब तो गैरों के तरीके हैं। इस्लाम में तो कुछ है ही नहीं। इस्लाम तो यूं कहता है 3 दिन का सोग है जो मरा है उसके लिए, और उन 3 दिन में भी उसके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार और उसके लिए इसाले सवाब किया जाएगा। सिर्फ औरत के लिए उसके सोग मनाने का हक है। अगर किसी का शौहर मर जाता है कि 4 महीने 10 दिन वो सोग मनाए, और उसको भी ये हुक्म है कि वो अपना गिरबान न फाड़े, हाथ जमीन पर न मारे, अपने गाल न बजाए, अपना माथा न पीटे, ये चीजें न करे। अल्लाह जो है सब्र करे और अल्लाह से दुआ मांगे, बस ये है इस्लाम के अंदर, और कुछ भी नहीं। शबाना है अलीगढ़ से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शबाना जी, अगर आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। शबाना जी, आप सवाल पूछ लीजिए। लगता है कि इनका पूरा ध्यान मुकम्मल तौर पे जो है टीवी की ऑडियो के ऊपर ही लगा हुआ है। और देखिए आप, टाइम की वेस्टेज तो होती ही है नाजरीन ये, और साथ ही साथ आपका जो इतना कीमती सवाल है जिसके लिए शो बनाया है हमने, ये भी पूरी तरीके से जाया हो जाता है, तो आप इस चीज का ख्याल रखें। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, सवाल पूछिए। चलिए एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइए अपना। नसरीन। जी बताइए नसरीन जी। देखिए आप फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला हमारी खैरत से भी करीब है, मिन हब्लिल वरीद। तो फिर इसमें जो वसीले का मामला जो आपने बताया कि वो किसी के वसीले से वास्ते से दुआ मांगी जाती है, जबकि हमारे यहाँ तो उलमा भी कहते हैं कि वसीले से कोई नहीं मांगी जा सकती, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से भी नहीं मांगी जा सकती। तो ये समझिए बुनियादी बात, दो बातें हो गई नहीं यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे की दुआएं नहीं सकती, अल्लाह ताला कहता है तुम मुझसे दूंगा, और ऐसा शहादत शरान के अमल से भी ये नहीं रहती। ठीक है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस आयत की तफसीर में मुस्तदरक हाकिम के अंदर हजरत मुस्तदरक जो है इमाम हाकिम ने हदीस नकल की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेकर के दुआ मांगी थी। तो इस हदीस पाक से साबित होता है कि अल्लाह के हबीब का वसीला दे सकते हैं। तो भाई लड़ने की क्या बात है, जो वसीला देकर के मांगते हैं वो भी सही है। आप नहीं देना चाहते, आपकी मर्जी है। मेरा मकसद कहने का ये था कि किसी का पल्ला पकड़ करके हम जन्नत में नहीं जाएंगे। कभी सोचें कि हम बस मुरीद हो गए हैं और वही हमें लेकर के चले जाएंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा से ये कह दिया था कि आप ये ना समझना कि आप नबी की बेटी हैं और ऐसी बख्श दी जाएंगी। आपसे आपके हर अमल का सवाल होगा। मेरी बात समझें, और जरा किसी भी तरीके का दिल में तासुब न, और जो वसीले के जरिए से सवाल करते हैं या अल्लाह से दुआ मांगते हैं वो लोग भी सही हैं, लेकिन उस वसीले का मतलब ये नहीं है कि बस आप सिर्फ और सिर्फ वसीले पर ही बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन वसीले से दुआ करना अल्लाह के हबीब के वसीले से जायज है। अगर कोई नहीं करता है कोई हर्ज नहीं है, हम उससे नहीं लड़ते हैं, आपको भी नहीं लड़ना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब्दुल हफीज है हमारे साथ लोनावला से, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी फरमाइए भाई। मैं ये बोल रहा था कि जिस तरीके से अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे। हेलो जी जी बताइए। हाँ क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि वो ये 10वां तीजा ये सब क्या है,
हाँ, ये नहीं मनाना चाहिए, ये बताया उन्होंने। आप बताइए, आपको क्या सवाल पूछना है? हमें ये सवाल पूछना है कि ईद मिलाद क्या है? हम तो जब से भाई ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, हम कई जगह तस्करा कर चुके हैं कि ये नहीं मनाना है, कुछ भी नहीं है ये सिर्फ एक यौम है। मिलाद ईद का लफ्ज तो हदीस पाक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारी दो ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा, कि हम मुसलमान हैं और हमारी दो ईदें हैं, तीसरी कोई ईद नहीं है। अगर कोई तीसरी ईद बनाने की कोशिश करता है वो दीन के अंदर नई चीज है और ऐसी है कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला और व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप जश्न विलादत पे इतना फोकस क्यों करते हो, मिशन रिसालत पे फोकस क्यों नहीं है? हमारा मकसद ये है कि जश्न विलादत की वजह से मिशन रिसालत को आप छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी इख्तिलाफ की वजह यह है, आप मिशन रिसालत को संभाल लीजिए, जश्न विलादत फिर आप जो है अपने तरीके से मनाइएगा, लेकिन पहले मिशन रिसालत को संभाल लीजिए। मैंने बताया था नबी सलाम की पैदाइश पर जब उसने बांदी ने आकर के खबर सुनाई, अबू लहब ने उसको खुशी में आजाद कर दिया। ये अबू लहब का तरीका है। और फिर जब नबी सलाम ने अपना मिशन 40 साल के बाद वो वादी से और पहाड़ी से ये कह करके सुनाया कि अल्लाह एक है कामयाब, तो वही शख्स था सबसे पहले गाली देने वाला जिसके बारे में अल्लाह ने तब्बत यदा अबी लहब नाजिल की है। तो जनाब आप ये बात समझते क्यों नहीं है? आपने जश्न के चक्कर में मिशन रिसालत को छोड़ दिया है। बिल्कुल सही कहा मुफ्ती साहब ने। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं शोएबा से जिन्होंने ग्रेटर नोएडा से कॉल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मेरे बहन को कोरोना हुआ है और भांजे को भी। भांजा तो ठीक है, बहन के लिए प्लीज दुआ कर दीजिए क्योंकि वो हार्ट की भी पेशेंट है और शुगर की भी पेशेंट है। उनको इतने तो सिम्टम्स नहीं है लेकिन ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है उनका, शुगर बढ़ जा रही है। क्या है उनका? सदिया। और अभी मेरे बहन भाई भी, और उनको इम्यूनिटी भी इतनी कम है क्योंकि मेरे बहन भाई का भी 8-9 महीने हुए डेथ हुई है। बहुत परेशान है जी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपकी बहन की जो है तबीयत दुरुस्त करे और अल्लाह ताला उनको शिफाए आजिला कामिला मुस्तमिर अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी सारी की सारी बीमारियों को खत्म फरमाए और बहुत जल्द अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए कर्नाटका से एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पूछे सवाल।